और देखिए एंटर होने लगा हूँ मैं। अभी मैं एंटर हो रहा हूँ तो अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ मक्की की जो सर्च होती है। हाँ स्टार्ट हो गए जो अंदर है। A brainstorming workshop on biotech intervention in maize, challenges and opportunities. November 1, 2025, venue ICAR IIMR, Broadwell, Ludhiana. Jointly organized by ICAR IIMR, Ludhiana and Biotech Consortium Indian Limited, New Delhi. Supported by Federation of State Industry of India. देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर इस समय हम आए हुए हैं लाडोवाल साउथ सिटी की तरफ। तो यहाँ पर मेज़ जो होता है, मक्की जो होती है, उस पर सर्च के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सर्चर आए हुए हैं क्या कह रहे हैं, नज़ारा भी देखिए। और हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं चलकर आगे क्या बातचीत चल रही है। ABG1 testing 1 year, ABG2 two testing 1 year. So it is just like molecular marker based crops, right? So 2 year of ABG testing, and the data was very encouraging from the ABG testing. And since it was the first time something like this was happening, so we approached our agriculture minister that this is something very novel which India has done in case of rice. So why don't you come and announce that it could have a big impact? And he was kind enough to announce it to the whole world. It was a huge media coverage. It was published in Nature, all Indian media, newspapers, everywhere it was there. And right now, these two varieties have been proposed for release by a Central Variety Release Committee. So this is the status of the world's first genome-edited rice variety, and I'm very sure that this kind of path will be followed by other institutions and other crops to bring forward the genome editing technology for commercialization. Thank you, sir, for sharing this interesting experience. I think this is the benefit of such panel discussions. We hear straight from the horse's mouth how things happen at the frontline level. Anil, you have rightly explained the procedure of how the genome-edited varieties of India, the first variety of course has been developed. So I also you have hinted what I wanted to just make clarification. Whether the SD1, SDN1 and SDN2 kind of genome-edited variety requires kind of approval GEC, what madam was saying like IBSC, then RCGM, then DESC kind of approval is required, or should any scientist go straight away like normal variety, put into IBT, ABT and then ABT1 and then finally go for release if it is higher yield, because in trials only you need maybe 5%, 10% higher yield is only criteria for releasing and developing a variety. So if that criteria is fulfilled by a genome-edited variety, or maybe making one or two nucleotide modification, then I think that will be good for anyone to move ahead without going for complication and complexity, because it is already been exempted from the regulatory regulation at different level. So my point is correct, or you need some kind of modification as addition? Thank you. As you said, so there is no need to go to GAAC. IDSC is the competent authority. So once you have a line which is exogenous DNA free, so that is a prerequisite. If there is exogenous DNA, it is GM. But if in your research you have come across a line which is exogenous DNA free, then what we can do is we can submit a regulatory dossier to our IBSC unit. IBSC functions at the institute level. For example, here in IIMR also there is an IBSC headed by Director IIMR. So no need to go anywhere. In your institute itself, submit an application saying that these lines are exogenous DNA free, and DBT has also prescribed the tests which are required, some overlapping PCR and some technical data.
So make a dossier that is exogenous DNA free, submit it to the institute IBSC, and the IBSC will give the certificate that IBSC has agreed that the lines are exogenous DNA free. And that is just intimated to RCGM through a portal. So that we need not even wait for any approval from RCGM. It's an intimation. IBS is the competent authority. And next day the material can be planted in the field just like any breeding material can be planted. Okay, madam. I think this is I think you have missed the value point. So in dossier, we have to do that this is endogenous DNA free. So by PCR analysis we can show, and some other, I think whole genome sequences is required or not for to make your data that to show that this variety or line or event is exogenous DNA free to submit the dossier to the IDs. Dr. Krishan, thank you for that query, and exactly the same question all of us had in 2022, 2023. In 2022, the same question. As Madam also pointed out about the digital signature genome sequencing. But people have done a lot of research about genome sequencing. And even if we develop any variety by traditional breeding, there also we find that there are subtle differences in the whole genome sequence. There are subtle differences in the expression of genes. So this kind of data gives a lot of noise. So that is why we decided that there is no need for any whole genome sequencing data. So whole genome sequencing data, Dr. Kishan, is not at all required for granting the exemption status. Only the overlapping PCR data and few other data, because there is a list of in that the DBT guidelines. So there is a list of assays which needs to be done. One is to show that the plants have become, for example, antibiotic sensitive. So in the initial T0 generation, the plants will harbor the antibiotic resistant gene. But when it is segregated, so then you have to show the data. For example, if the antibiotic in consideration was kanamycin or agromycin, you just grow your plants in that and show that they are dying. So that is one antibiotic resistant data. Another is the overlapping PCR data, that you design overlapping primers for the construct which you have initially used for transformation, and you show that there is no amplification, and most of the time you will also have to have positive. And we know that certain segments of Indian maize, for example, QPM, they had narrow genetic base initially, but the breeders have then taken a lot of pain in expanding that base. Similarly, for white also same thing happens. With these biotechnological tools coming, and ultimately with commercial production happening of certain events, how do you see that thing helping out or being different from what conventionally is just being done? Okay, so thank you again, Dr. Ashwin. So diversity is of course not only necessity for the improvement, but I must say diversity is essential for the survival of whole living organism. Without diversity, you cannot survive. And it is very rightly written by if you see the Falconer, summation, the heterosis is equal to the summation dy square. And d is nothing but it is a directional dominance, and y square is, it tells about the differences in the alleles of the two parents involved in making the process. So without diversity, we cannot go for the heterosis breeding, and we cannot go for any kind of improvement. Now the question is how we can maintain the genetic diversity or the variability or physiological variation, physical, physiological and genetical variation among the genome plant. आज का जो कॉन्फ्रेंस है एक्चुअली वो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में जो हो रहा है वो एक्चुअली है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हमारी जो मक्का की प्रोडक्टिविटी भारत में कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर आज हम मंथन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ सभी इन्वॉल्व है। और जो क्योंकि जो हमारा जो भारत में जो आप मक्का की प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो करीबन 3.5 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। तो ये 3.5 टन से लेके हम 5 से 5.5 टन तक कैसे इसको लेके जाए 2030 तक, उस विषय में आज हम यहाँ पे बैठ के मंथन कर रहे हैं।
इसमें साइंटिस्ट जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी से भी हैं, बात जो कृषि अनुसंधान परिषद वहाँ से हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि इस फील्ड में काम करती है मक्का पे, उन्हीं सब से हमारे पास यहाँ पे विद्यमान है। सर क्या निकल के आ रहा है, क्या चाल है? इसमें ये है जी, जो एक्चुअली जो रोड मैप जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारत सरकार का जो मिशन है कि हम कैसे 30% ब्लेंडिंग करनी इथेनॉल की पेट्रोल में, तो उसके लिए जो मक्का हमें 14 से 15 मिलियन टन उसके लिए एक्स्ट्रा मक्का की जरूरत पड़ेगी, वो मक्का कहाँ से आएगी। तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं, एक तो एरिया कैसे इंक्रीज करें, और एक तो एरिया इंक्रीज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा हमारा है कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हाइब्रिड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो उनसे दोनों हम ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। तो एरिया के साथ साथ जाएंगे हम, दूसरे टूल्स भी यूज़ करेंगे, तो हमारे जो हाइब्रिड्स का जो पोटेंशियल है अभी देश में उस 10 साढ़े 10 टन पर हेक्टेयर के आसपास आ रहा है, उसको हम 12 टन तक ले जाने की सोच रहे हैं। यदि हम दोनों चीज़ें हम कर पाए तो मुझे लगता है 2030 तक हमारी जितनी भी मक्का की रिक्वायरमेंट है भारत देश की, वो पूरी हो जाएगी। तो सर किसानों के लिए क्या मैसेज है? किसानों के लिए मैसेज ये है कि मक्का जो आप है मक्का लगाएं, और क्योंकि हमारा जो पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो हम देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है, हमारा जो सोइल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी बिगड़ती जा रही है, पोल्यूशंस बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। जितना भी एरिया है, मुझे लगता है राइस में जो एरिया उसका 10 से 15% यदि मक्का में चला जाए, तो जितनी पंजाब सरकार की जो रिक्वायरमेंट है मक्का की करीबन 4 साढ़े 4 मिलियन टन के आसपास है, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो दूसरे प्रदेशों पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे वो बिहार पे हो, चाहे वेस्ट बंगाल पे हो, चाहे राजस्थान पे हो, वो कम होगी। और यहाँ क्योंकि हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो जितना प्रदेश को मक्का चाहिए हम चाहते हैं कि उतना इस प्रदेश में ही पैदा हो। सर अमेरिकन जो मेज होता है जो बाजार में बिकता है वो उसमें क्या डिफरेंस है हमारे जो उसमें जो वो कौन सी क्वालिटी है? देखो, जो अमेरिकन मेज की जो बात करते हैं, जो डेंट कॉर्न होती है, डेंट कॉर्न यदि आप देखोगे तो जो दाने पर थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ आता है, और उसे बोलते हैं अमेरिकन मेज। हमारी वाली जो होती है उसमें डेंट नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन भारत में जो अमेरिकन मेज है वो करीबन 4-5% एरिया में लगती है, और बाकी की सारी एरिया में हमारी सेमी डेंट सेमी प्रिंट लगती है। अमेरिकन मक्का होती है, उसके लिए जो क्लाइमेट है वो अलग प्रकार का चाहिए, वो 180 से 200 दिन की क्रॉप होती है, जबकि हमारे देश में जो क्रॉप होती है वो 100 से लेकर 120-130 दिन की क्रॉप होती है। तो डेंट कॉर्न का जो अमेरिकन कॉर्न का हमारे पास जो एरिया वो बहुत कम है, इसलिए हम कोशिश करें कि सेमी डेंट टाइप के हम मक्का लेके आएँ, ताकि जिसके अंदर इथेनॉल भी ज़्यादा हो और जिसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो इथेनॉल की जो हाइब्रिड डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 साल में हम उस वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और देश की जो आत्मनिर्भरता है इथेनॉल के ऊपर उसको एक पूरी सर कर जो पाएंगे। डायबिटिक पेशेंट है वो इसको खाने से परहेज करते हैं, ऐसे भी कोई मतलब कि मक्के में मीठा करने की चीनी की थोड़ा अधिक होता है? देखो जी, जो शुगर कंटेंट होता है वो तो मक्का में के सभी में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सभी में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डायबिटिक पेशेंट्स मना कि नहीं खाएं। जो हमारी कई प्रकार की मक्का है हमारे पास, हम बात करें क्वालिटी प्रोटीन मेज होती है। क्वालिटी प्रोटीन मेज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर खाने में वही यूज होती है या कंपोजिट्स होती है, वो दोनों चीज़ें यूज होती है, और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं कि उससे डायबिटीज़ बढ़ता है या घटता है। तो सर पंजाब के साथ जो किसान है उनका मक्का के लिए क्या रुझान है इस समय जो आप? पंजाब का जो किसान है उसका रुझान, यदि आप खरीफ का जो एरिया देखते हो करीबन 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो डिस्टिलीज देखते हैं पंजाब के अंदर 10 से 12 डिस्टिलीज लगी हुई है, उनकी यदि मैं देखता हूँ यदि फुल कैपेसिटी पे चलती है तो उनको करीबन 40 लाख टन मक्का चाहिए। हमारे प्रदेश में अभी तक जो मक्का प्रोडक्शन हो रहा है वो 5 लाख टन के आसपास है। इसलिए हम चाहते हैं किसानों से भी मैं ये विनती करता हूँ, मेरा नम्र निवेदन है किसानों से कि आप खरीफ में मक्का लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि स्प्रिंग में रुझान ज़्यादा है, खरीफ में कम है। तो हम किसानों से यही निवेदन करते हैं कि आप खरीफ में थोड़ी सी मक्का लेके आएँ, ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सस्टेनेबल हो, हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। सर कौन सी किस्म का बेस्ट है अभी मक्का सीजन के हिसाब से बीज में? अभी जो यदि आप देखते हैं, देखो मक्का ऐसी क्रॉप है किसी भी सीज़न में लगा लो आप, चाहे रबी में लगा लो, चाहे स्प्रिंग में लगा लो, चाहे खरीफ में लगा लो, चाहे समर में लगा लो, मक्का की यही क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि मक्का किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में फिट बैठ जाती है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आप देखोगे 80 से लेकर 150 दिन की क्रॉप होती है। यदि आपके पास विंडो जो है आपके 80 दिन का है तो आप 80 दिन की वैरायटी लगाओ, 100 दिन का है 100 दिन की वैरायटी लगाओ, 120 दिन का 120 दिन का विंडो लगाओ, वैरायटी लगाओ, तो उसके हिसाब से हर जगह फिट होती है। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, सब जो विंटर में मेज होती है, जो बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में होती है, वो यहाँ पे कम होती है, न की बराबरी होती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार टेम्परेचर आपका 0 से नीचे चला जाता है। तो जब 0 से नीचे चला जाएगा तो उसमें मोर्टेलिटी आ जाती है। इसलिए हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे खरीफ पे आप ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फिर आप स्प्रिंग में लगाएं। लेकिन स्प्रिंग लगाने में जो इश्यूज आते हैं
क्योंकि पंजाब सरकार भी उससे बहुत चिंतित है, क्योंकि जो वाटर है कि स्प्रिंग में थोड़ा ज़्यादा लेता है बनस्पत की हमारी खरीफ मेज की। तो हम कहते हैं कि 15 फरवरी से पहले आप स्प्रिंग मेज की सोइंग करो, पहला तरीका। दूसरा ये है कि आप जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बजाय आप मीडियम ड्यूरेशन लगाओ, 100 से 120 दिन की क्रॉप लगाओ स्प्रिंग के अंदर। तीसरा है कि प्रिसाइज इरीगेशन करो, जो फ्लड इरीगेशन का मेथड है मुझे लगता है उसको हमें छोड़ना चाहिए, तभी हमारा जो पानी है प्रीशियस वाटर ग्राउंड वाटर है वो तब बच पाएगा। जो फ्लड सर आए हुए हैं उसके हिसाब से कैसे देखते हैं, वहाँ पे कितनी दिक्कत आएगी कुछ दिन के? देखो जी, खरीफ में जो भी मक्का लगता है वो रिज पे लगता है, फ्लैट में नहीं लगता है। यदि आप स्प्रिंग में देखोगे वो निमेटिक प्लांटर से लगता है, वो रिज पे नहीं लगता, वो बेड पे लगता है। तो किसानों को भी पता होता है कि खरीफ के अंदर कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए किसान रिज पे लगाते हैं। और रिज पे यदि पानी 12 घंटे तक भरा है तो कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद पानी यदि रिसीड कर जाता है, आपका रिज क्लियर हो जाता है रूट पोर्शन, तो मुझे लगता नहीं कि मक्का में इतनी कोई प्रॉब्लम आती। सर एक भुट्टा होता है जो अपना पंजाबी भुट्टा है, जो पंजाब वाला है, 10-20 रुपये किलो आता है। एक और बहुत बड़ी बड़ी छल्ली आती हैं, वो 70-80 रुपये का एक मिलता है भुट्टा। वो कौन सा होता है बड़ा स्पेशल जो होता है भुट्टा? वो नहीं जी, अभी जो भुट्टा देख रहे हो, जो जिस पंजाबी जो आप देखोगे, कभी आप यहाँ से यदि दिल्ली तक जाओगे तो उसमें लिखा होगा कई जगह ठेलों पे लुधियाना की छल्ली, ठीक है जी, लुधियाना की फेमस छल्ली लिखा होता है। बेसिकली वो जो है स्वीट कॉर्न है, वो स्वीट कॉर्न है जो खाने में काम आती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और सोप करती है खाने में। तो वो जो आप बात करें वो स्वीट कॉर्न मिलता है जी, फील्ड कॉर्न नहीं मिलता है खाने के लिए भुट्टे के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डेप्यूटी डायरेक्टर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम आज यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस मेज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और जो चैलेंजेस हैं मेज़ कल्टीवेशन में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मेज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% अचीव कर गए और टारगेट है कि इसको 2030 तक 30% करें। सो कॉर्न की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। आप कैसे बढ़ाएंगे? बिकॉज ज़मीन लिमिटेड है, बाकी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन भी है, सो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। साथ साथ ऐसी क्रॉप्स, ऐसी वैराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि गर्मी, पानी की खपत कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सके दोनों सीज़न में, आपके खरीफ में भी और रबी में भी। सो हम इंडस्ट्री से हैं और वी एडवोकेट दैट ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस और नई वैराइटीज डेवलप की। तो सर इंडिया में कौन सी स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है? बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, 10 टन हेक्टेयर का प्रोडक्शन। सर इस तरह की वर्कशॉपों से आपको क्या लगता है, क्या आउटपुट निकलता है? इस तरह की वर्कशॉप से हम जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं नई वैराइटीज़ डेवलप करने के लिए, कैसे आप जो आपका प्रोसेस है टेक्नोलॉजी नई वैराइटी डेवलप करने का उसको फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रेड्स डेवलप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट, प्रोडक्टिविटी, डिजीज, पेस्ट, सॉइल सैलिनिटी, अलग अलग तरह की जो। अच्छा, आपके लैब बनी हुई है यहाँ पर, सभी यहाँ लैब बनी हुई हैं, तो जब रिसर्च नई रिसर्च आपने क्या किया, कितना का बेनिफिट हुआ अभी तक आपको रिसर्च में जो कर रहे हैं आप लोग, कितना का इंक्रीज हुआ हम है? रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ जी। मैं फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री से हूँ। हाँ। हम खाली इस बारे में टेक्नोलॉजी का यूज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करते हो। रिसर्च IIMR की है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च है, वो लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ लैब बनी हुई है ना, जहाँ पर सभी लैब बनी हुई है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या बेनिफिट होगा ऐसी कॉन्फ्रेंस? तो मेज़ जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इंग्लिश हिंदी में मेज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है आज की डेट में, क्योंकि इसको फूड, फीड, फ्यूल, इथेनॉल प्रोडक्शन सभी के लिए ज़रूरत है और इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है अभी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ लाइक USA एंड अदर कंट्रीज़। तो इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये हमें करनी पड़ेगी, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो आज की मीटिंग थी, ये बायोटेक इंटरवेंशंस कैसे हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं या शंकाएँ हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, और जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, भारत सरकार ने बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं
ताकि ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर सब इन पे यूज़ कर सकें, उस पर रिसर्च करें और अल्टीमेटली किसानों के फ़ायदे के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमें डेवलप करनी है, और ताकि ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े बट किसानों की आमदनी या वो भी बढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ये मक्के में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस।